Good morning, students. Today we are going for the very different part of the grammar. It is really very significant. I know that every student faces the same problem regarding to this pattern. Yeah, all of you have the problem regarding to this grammatical pattern, and the name of the pattern is change the voice. Change the voice. Yeah, I am going to write here change the voice. Actually it's a very simple one, but we don't understand. While you just listen any conversation, or you can listen the interview of any celebrity, while they are just throwing the some sentences may be in active or some sentences in passive form, but you don't recognize them. For your just kind information, though the good speaker they always use the such kinds of the sentences, those are in passive form. But how to make this sentence into passive form, active and passive, why it is called as active and why it is called as a passive? So let's see in this chapter how to make the change the voice. So myself Professor More, I am just presenting you 100 chapter grammar series, and now today I am here to present you the new chapter. The name of the new chapter is the change the voice. So listen carefully and just learn it in a very simple way. Actually, active voice is the first part of the change the voice, and what is meant by the voice and change. So we will also learn it. Active voice, it has this particular structure, and that is subject plus verb plus object. Yeah. Before that, we have to learn what is the change the voice. Voice means क्या? हम लोग बहुत बार ऐसे बोलते हैं जब हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो रहता है, सब्जेक्ट जो भी एक्टिविटी करता है वो डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है, मतलब जो वो काम करता है दैट इज़ एक्टिव वॉइस, और वो काम किसी तरीके से कर लिया जाता है दैट इज़ इन पैसिव फॉर्म. बहुत सिंपल होता है. सीधे से बात करना मतलब एक्टिव वॉइस होता है, और घुमा फिरा के बात करना दैट इज़ पैसिव वॉइस. इतना सिंपल है. एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव में क्या होता है, इसका हम ज़रूर इसमें देखेंगे. इसमें चेंज क्यों आता है, ऐसे सेंटेंस क्यों बनाते हैं. पैसिव वॉइस, पैसिव हैज़ द डिफरेंट स्ट्रक्चर. You can see here in this format of the active voice, sentence is started with subject, and what is the ends with object. But you will find here in the passive form the sentence started with the object, and then we use their helping verb, then third past participle of the verb, then by, then subject, otherwise its case. So what is the difference between these two format? आप देख सकते हो इस सेंटेंस की शुरुआत हो चुकी है सब्जेक्ट से, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलता है, एट द एंड, लास्ट में मिलता है. इसमें सेंटेंस का एंड हो चुका है ऑब्जेक्ट से, और इस सेंटेंस का अगर स्टार्ट आप देखोगे तो इसकी स्टार्ट होती है ऑब्जेक्ट से. मतलब यहाँ पे जो लास्ट में आता है वो जो यहाँ पे शुरू में आता है, जो यहाँ पे शुरू में आता है वो यहाँ पे लास्ट में आता है. सो कंप्लीटली अपोजिट, बट it is the skill. We have to put the same sentence in this format, but this part is really very important, very important. We are going to learn change the voice at the very depth level. If you have the interest, you will get the everything. आप ध्यान से अगर इसे देखोगे, अगर शुरू से इसको देखोगे तो चेंज द वॉइस का बहुत डिफ़िकल्ट लेवल तक हम लोग जा सकते हैं. डिफ़िकल्ट लेवल तक हम लोग चेंज द वॉइस पढ़ने वाले हैं, ठीक है. एंड इट इज़ रियली स्पेशली फॉर दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द एमपीएससी एग्ज़ाम, दोज आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, दे कैन लर्न वेरी इजीली. ओके, हम लोग देख सकते हैं इसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस में ये दोनों में फ़र्क होता है. अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं हमको.
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब है एम, इज, आर, देन was and where. These are the helping verbs. But you can find there am is or is concerned with present tense, was or is past tense. सिंपल है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रेजेंट, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पास्ट टेंस। अगर ये सेंटेंस में हमको यूज़ करना है तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हमको सेंटेंस के टेंस के हिसाब से करना पड़ता है। You can see here the form of the verb, we can identify it, very simple. उसको जो फॉर्म है, जो फॉर्म में दिया गया है उसी तरह से हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते, फिर उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करते, फिर बाद में पास बाय लिखते, उसके बाद में सब्जेक्ट और अदर। सी फॉर व्हाट, सी फॉर केस। हमको अभी दो बातें बहुत ज़रूरी, वो लिख लेना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पहले मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस का एक एग्जाम्पल लिखते हम लोग, ठीक है, जो हमको बार बार लगेगा, तो मैं यह फॉर्मेट भी बाजू में लिख के रखता हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे केस है, ठीक है, CASE केस। सब्जेक्ट कौन कौन से थे, आई, ही, शी, इट, वी, दे एंड यू, ओके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं केस में क्या है, आई का केस होता है मी, ही का आता है हिम, शी का हर, इट का ईटी आता है, वी का आता है अस, दे का आता है देम, और यू का आता है यू। अब बोलोगे सर ये सब्जेक्ट और ये केस में, सो व्हाट इज द स्पेशलिटी, यू कैन सी देयर एवरी सेंटेंस इज स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट, या बट वेयर यू विल फाइंड द केसेस, केसेस ऑलवेज यू विल फाइंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही सब्जेक्ट आता है और लास्ट में केस आता है। केस कभी भी आपको सेंटेंस के शुरू में नहीं दिखेगा। ऐसा कभी देखा है हमने, हर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हिम इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, नो, बिकॉज केसेस ऑलवेज फाइंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। हमको ये ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है। आई का मी होता है, ही का हिम होता है, शी का हर, इट का इट होता है, वी का अस, दे का देम, यू का यू ही रहता है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे भी ईट है और यहाँ पे भी ईट है, तो केस कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा, कैसे पहचानेंगे? सिंपल है, जो शुरू में आया वो सब्जेक्ट, लास्ट में आया वो केस है। यहाँ पे भी यू है, देखो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसका केस भी सेम है। कौन कौन से हो, ईट और यू। यू शुरू में आता है, देखो यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, सो यू सब्जेक्ट हो गया। आई हेल्प यू, यू लास्ट में चला गया तो दैट इज केस। तो बहुत सिंपल है, ध्यान में रखना अपने को। लेकिन इसके लिए मैंने जो फॉर्मेट अभी बोला था पैसिव है इसका, पैसिव इसमें जो हेल्प स्टार्ट होता है उसका देखो ऐसा था, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट अदरवाइज केस, ठीक है। इसका ये फॉर्मेट है। अगर इसमें हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, हमको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, एक्टिव वॉइस ऑलवेज कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, डोंट फॉरगेट दैट वन। अगर हमको सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है तो उसको पैसिव में करना पड़ता है, और पैसिव है तो एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम लोग दोनों बातें देखेंगे, लेकिन पहले हमको सीखना है एक्टिव को पैसिव कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, दी गवर्नमेंट हेल्प्स दी पुअर पीपल, ऐसा एक सेंटेंस है, ठीक है। जिसे सेंटेंस आया तो हमको क्या करना है, तो उसको पहले 3 पार्ट्स में हमको उसको डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट कौन कौन से है, तो सब्जेक्ट में द गवर्नमेंट इज द सब्जेक्ट, ओके, हेल्प्स इज द वर्ब, और लास्ट में जो आता है वो आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने बहुत पहले ही कुछ पहले चैप्टर्स में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सो ऑलरेडी टॉट यू।
Okay, now once again just pay attention here. Sentence is just started with subject, then verb, and then remaining part is called as object. Okay, अभी इसी सेंटेंस का हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है. अभी ये फॉर्मेट आया मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्टिव से एक्टिव वॉइस हो गया. बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि एक्टिव वॉइस इसको क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्टिव वॉइस. ऐसा होता है ये सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एक्टिव है, मतलब सब्जेक्ट शुरू में आता है तो एक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है इसलिए वो एक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस. और जिसमें वो जो कुछ काम कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट है, किसने किया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा है तो उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस. बहुत सिंपल है. इसीलिए यहाँ पे एक्टिव वॉइस का पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. तो अपने पास ये फॉर्मेट है, ठीक है, इस फॉर्मेट को हमको याद रखना है, इस फॉर्मेट को हमको लिखना है, इसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे किससे शुरुआत करने को बोला है, ऑब्जेक्ट से. ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, द पुअर पीपल, द पुअर पीपल हो गया. उसके बाद में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब. अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, हमने यहाँ पे लिखे हैं एम, इज, आर, उसके बाद में वॉज और वेयर. अभी हमको हेल्पिंग वर्ब इनमें से ढूंढना है. वी हैव टू फाइंड आउट द विच हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज हियर. ठीक है, इसके लिए क्या करना है, वर्ब की तरफ देखने का. अपने को वर्ब में देखा तो आपको दिखेगा यहाँ पे यस यूज किया है. ठीक है, यस है ना, इट मीन्स दैट देयर इज प्रेजेंट टेंस. यस और यस जब आता है या कौन सा भी उसको सफिक्स नहीं आता है तो इसका मतलब होता है देयर इज प्रेजेंट टेंस. अगर उसमें ईडी है या पास्ट फॉर्म है तो इसका मतलब होता है वहाँ पे पास्ट टेंस है. ठीक है, इस सेंटेंस में देखा जाए तो यस है मतलब इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है. तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है. तो प्रेजेंट टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, कौन कौन से है वो, एम, इज, आर. हम लोग अभी यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अभी ऑब्जेक्ट इधर कन्वर्ट होके सब्जेक्ट हो गया. द पुअर पीपल, पीपल है मतलब यहाँ पे हम लोग एम नहीं यूज कर सकते, इज नहीं यूज कर सकते, हम लोग यूज करेंगे आर. आर ये क्यों, बिकॉज देयर इज पीपल. ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट का रोल कर रहा है तो यहाँ पे पीपल है इसलिए इधर यूज करना पड़ेगा आर. Clear? Once again, we have to we started the passive voice with object. Object है the poor people. उसके बाद में क्या यूज करना है, helping verb. Helping verb कौन सा है, are. उसके बाद में थर्ड पास्ट पार्टिसिपल. थर्ड पास्ट पार्टिसिपल हमको अभी यूज करना है वर्ब का. वर्ब कौन सा है, हेल्प. हेल्प का थर्ड पास्ट पार्टिसिपल आता है ईडी. अंडरस्टैंड? वंस अगेन थर्ड पास्ट पार्टिसिपल हमने यूज़ किया. उसके बाद में क्या यूज़ करना है हमको, बाय. ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है यहाँ पे, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का केस नहीं होता है, सिर्फ ये सब्जेक्ट का केस होता है, बाकी ये छोड़ के कौन सा भी सब्जेक्ट आए तो उसका केस नहीं होता है. ठीक है, उसी वर्ड को यूज़ करना पड़ता है, द गवर्नमेंट. यू कैन सी here the poor people are helped by the government. कितना सिंपल है, मतलब एक्टिव का हम लोगों ने क्या किया, पैसिव किया. Once again I just draw your attention to the particular word of active voice that is given in active form. Why it is active, because it is started with the subject. Subject is the active because who help the poor, government is helping them. That is important. नाउ व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट सेंटेंस, पैसिव फॉर्म में किसने हेल्प किया वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, द पुअर पीपल आर हेल्प, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो देर आर द two things. Once again I would like to repeat one thing, active voice and passive voice. So what is the difference between these two? Active voice is started with subject, passive voice is always started with the object. In passive form, active voice, the subject you will find at the end of the sentence. So both are completely opposite of each other. So there are so many sentences people like to use them in daily communication. So once again I would like to repeat this thing. If you want to just make the command over
your language, and if you want to get the efficiency, you have to keep the knowledge regarding to the voice, because passive voice is a very impressive way of speaking. If you are using the some sentences, those are in passive form, they are very impressive, really very impressive. Because if you are putting the same sentence, the government helps the poor people, that is not more effective. But you can see here, the poor people are helped by the government. So this is the statement which throw the impression to the listener. So once again, if you are trying very much to use the all sentences in passive form, so it will be very impressive. So once again, see that there are the two voices, active voice and passive voice. Active is started with subject, passive is started with object. So how to just make the change into, and how to convert this active into passive? So there are some formulas. Here is the formula. There are also some subject and cases, okay, and helping verbs are there. हम लोग कैसे यूज करना है? देयर आर सो मैनी सेंटेंसेस. वंस अगेन आई वुड लाइक टू take the another example for it. Now see the another example. She concentrate she let's see the another example. She achieves the goal. Okay, here is the sentence. See that she achieves the goal. What we have to do first? We have to underline the subject, which is the subject, and then verb, and remaining part is called as a object. Okay, see that subject, verb, object. Now convert this sentence into passive form. Passive is also started with object. Which is the object? The goal. For example, the goal. Then yes is there. Yes is, it means that there is present tense. Am, is, are. So what we can use here? हम क्या यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पे द गोल है तो इसके मतलब हम लोग इज यूज़ करेंगे. इसका क्या करेंगे? उसके बाद में थर्ड फॉर्म में अचीव का क्या आता है? अचीव का थर्ड फॉर्म आता है विथ ईडी. ठीक है. उसके बाद में क्या यूज़ करते हैं? बाय के बाद में क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट कौन सा है? शी. हम लोग देखेंगे यहाँ पे शी का केस क्या होता है? हर. सो वी कैन यूज़ हियर जस्ट लाइक दैट वन, द गोल इज अचीव्ड बाय हर. इसमें थोड़ा सा चेंज अगर हम लोग कर दें, यहाँ पे यस की बजाय हम लोग अगर यहाँ पे ईडी यूज़ करते तो क्या होता सेंटेंस? तो आप लोग देख सकते हो, सेंटेंस स्टार्टेड विद द गोल, दैट इज ऑब्जेक्ट. उसके बाद में यहाँ पे ईडी है तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं यूज़ कर सकते. ईडी मतलब होता है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में दो आते हैं, वॉज और वेयर. तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? वॉज. ओके. द गोल वॉज अचीव्ड बाय हर. सो दिस इज द चेंजेस. So once again, I would like to draw your attention to the particular area, that is how to make the active into passive form. So there are some formulas. The formula we have to keep it in mind first, and then we have to also remember these things, the subjects and their cases. Okay, so this is the basic part of change the voice. So once again, try to listen and find out the more sentences, those are in passive form. We will see the everything regarding to the this grammatical pattern. I think so. I hope so all of you understood and also got my point, how to make the change the voice and how to convert active into passive form, and what are the rules there, and why it is called as active and why it is called as a passive form. So I hope so all of you understood very well. If you like very much, so please share with others, and thank you very much. Remaining part will be continue in the next chapter. Thank you. Have a nice day.